Assalamu alaikum. Salam. How are you guys? Welcome back to school. And right now we have only two students. There are others. You know. सर 1 मिनट में हमको बोलते. Okay. Let's just wait for 5 minutes. Then we'll start officially. Yes, guys. I think so. Other students are not going to come, and let's just start our day, our class, the very first day of our school of a zero term. And it's better to start with the recitation of Holy Quran. And for this, I want any one of you, please come forward as a volunteer and just recite some verses of Holy Quran. Yes, please. Who is going to come? Faiza? Faiza? Yes, sir. Just write some verses of Holy Quran, please. Don't write, Yes, sir. Recite. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Jazakallah. Okay, now in this term, what we are going to do, first of all, let me tell you what we normally do in class O3. In class O2, it is considered as you guys have done P2 till arrays, and some of the P2 topics were remaining in the previous O2, and you have done P1 till chapter number 5, if I'm not wrong. Kindly let me know. Let me know. Azmir, Varisha, Faiza is new here. Azmir. Umar. Yes, sir. Azmir, have we done chapter number 5? Input and output devices in P1. Okay, let me share the screen with you. Then let me know. Just hold on.
Okay, we did chapter number 4, right? हमने चैप्टर नंबर 4 ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कर लिया था. अब जो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 5 जो है वो क्या हमने स्टार्ट कर दिया था, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, बिकॉज इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम और मल्टीपल प्लेसेस पे पढ़ाने की वजह से आई टोटली फॉरगॉट ना. काइंडली लेट मी नो, रिकॉल मी. We did chapter number 4. Did we? Beta, why you guys are not responding? Hello? Are you getting my voice? Yes, sir. Let me know, please. Faiza, you were not available in class O2. Varisha and Azmir and Umar, I want you to please reply. Azmir, Varisha, Umar. Let's start with the chapter number 5, input and output devices. Okay, what is an input and output device? As we all know from the very junior classes, that input device are the devices that are responsible to introduce the data into the computer, and output devices are devices that are also that are responsible to give the results from the computer to the user. The new point that is for you, that input devices also perform one important thing. Input devices are responsible to convert the human understandable form into machine understandable form. Like input devices का काम क्या है? Input device से data आता है system तक, system then जो है वो data जो है वो output devices को देता है. अब point ये है, input device सिर्फ data नहीं दे रहा. Input device data देने के साथ साथ human understandable, क्योंकि data कौन दे रहा है? Ultimately humans जो है वो system को data देते हैं. Human understandable form को system understandable form में transform कर रहा है. ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है. हम अब तक ये समझते थे, छोटी क्लासेस में हमें पढ़ाया जाता है या प्रीवियस क्लासेस के अंदर वो ये बताया जाता है कि इनपुट डिवाइसेस आर डिवाइसेस that normally gives the data to the computer, that inputs the data to the computer, introduces the data to the computer. But ये डिटेल्स में नहीं बताया जाता कि input devices are devices that are also responsible to transform the data into from human understandable form to machine understandable form. क्योंकि जब तक वो ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा तब तक मशीन उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगी. यानी ये इंटरप्रेट कर रहा है ह्यूमन की फॉर्म को मशीन की फॉर्म में. देन मशीन के पास डेटा आ रहा है, दैट इज प्रोसेसिंग. अब प्रोसेसिंग का पार्ट वी डिड इन चैप्टर नंबर 4. डेटा प्रोसेसिंग साइकिल जो हमने देखी, उसके अंदर हमने देखा कि आपका सिंगल इंस्ट्रक्शन जो है वो किस तरह मूव ऑन हो रही है एंड टिल द एग्जीक्यूशन. Once it is executed, let's say execution का मतलब है it's processed. Once it is processed, then there is a need of an output device. तो output device फिर क्या है? Output device is a device that gives the result of the processed data. और again क्या कर रहा है? Machine understandable form to human understandable form में transform कर रहा है. ये है आपका output device. तो ये मैंने आपको बिल्कुल basic definition बताई. Input device and output device key. In this chapter, what we are going to learn, some input devices that we are going to learn are scanners, barcodes, QR codes, digital cameras, keyboards, pointing devices, microphones, touch screens, sensors, interactive whiteboards. Whereas some output devices that we are going to cover in this chapter are inkjet printers, laser printers, 3D printers, 2D and 3D cutters, actuators, loudspeakers, LED, LCD monitors,
and projectors. Now let's start with the scanner. Input devices and scanner. Acha, one important thing, how we came to know that whether the device is input or not. For this, sometimes ऐसा हो जाता है, student won't understand कि यार ये जो device है ये input है या output है. इसके लिए बड़ा simple सा और आसान सा तरीका है. Just think whatever the device, किसी भी device के बारे में जिससे आपसे पूछे जा रहे हैं, आपने सिर्फ इतना सोचना है कि ये input है या नहीं है, इसके लिए कि वो device exactly काम क्या कर रही है. Either that device is introducing the data to the computer, or that device is introducing the data to the human. If it is introducing the data to the computer, that means it is an input, and if it is introducing the data to the human, that means it is an output device. Like for example, let's take an example of a scanner. सामने है हमारे. A scanner is the device where you put your hard copy and it transforms this data into soft copy in the computer. The scanner, the working of a scanner is what? Hard copy हम scanner के अंदर रखते हैं, ठीक है? जैसे like ये जो picture यहाँ पे आपके सामने है, ठीक है? Hard copy हम scanner पे रखते हैं, हम lid off करते हैं, scan करते हैं, what comes again? वहाँ पे क्या होता है? ये scanned copy transform into soft copy. और सॉफ्ट कॉपी क्या है? दैट इज मशीन रीडेबल. सॉफ्ट कॉपी क्या है? मतलब मशीन के अंदर चली गई, यानी यहाँ जो डेटा इंट्रोड्यूस हुआ फॉर द सिस्टम हुआ, नॉट फॉर द ह्यूमन हुआ. तो सिस्टम के लिए जब चीज को इंट्रोड्यूस हो रही है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? ये इनपुट डिवाइस हो गया. गेटिंग इट? डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस. कौन सी डिवाइस, कैसी भी रैंडम डिवाइस हो, अगर मैं आपसे पूछूं फॉर एग्जांपल कोई सी भी डिवाइस हो, आप उसे बता सकते हैं कि यार ये इनपुट है आउटपुट है. ठीक है ना? कैसे क्लियर हो रहा है उमर? गेटिंग इट? Yes, sir. Other guys? Yes, sir. ठीक है. तो devices that introduces the data to the computer are input. Devices that introduce data to the human, that are output devices. Now scanners की हम डिस्कशन करें. Scanner is simply a type of device that transforms the hard copy form into soft copy form, that digitizes them basically. Digitizes का मतलब ये होता है कि एक पिक्चर को, एक चीज को मशीन फॉर्म के अंदर ले आना. डिजिटाइज का मतलब, डिजिटाइज का वर्ड आई सी है बिकॉज आवर कंप्यूटर इज अ डिजिटल कंप्यूटर. ठीक है? डिजिटाइज करना यानी डिजिटल फॉर्म में ये जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है. Scanners are of two types, 2D and 3D scanners. 2D scanners are very simple scanners. It's simply a paper based scanners, जिसके अंदर जो है वो पेपर में डेटा इनपुट होता है हार्ड कॉपी में. हार्ड कॉपी क्या है? जो कि आपकी पेपर फॉर्म में जो आपका डेटा है, दैट्स कॉल्ड हार्ड कॉपी. ये पेपर जो है व्हेन यू पुट इनटू द स्कैनर, ठीक है, वंस यू स्कैन इट, दिस पेपर डेटा ट्रांसफॉर्म इनटू सॉफ्ट कॉपी फॉर्म इन अ फॉर्म ऑफ इमेज. ठीक है? ये आपका सिंपल एक 2D स्कैनर का काम है. अच्छा, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट ये है, तारिक हुसैन, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट खैर ये है कि जो आपका डेटा है वो इमेज फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहा है. अब इंपॉर्टेंट ये है कि आया हम इसे एडिटेबल फॉर्मेट में इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते या कर सकते. देखें, लाइक फॉर एग्जांपल ये बुक इस वक्त आपके सामने एक शेयर्ड है. ठीक है? ये बुक अगर आप देख रहे हैं तो इट इज नॉट इन अ फॉर्म ऑफ एडिटेबल. ठीक है? दिस इज नॉट एडिटेबल फॉर्म. यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट तो कर सकता हूँ, ठीक है, बट आई कैन नॉट एडिट दीज वैल्यूज. लाइक मैं यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया दीज टाइप्स ऑफ स्कैनर्स, आई कैन नॉट बैकस्पेसेस एंड आई कैन नॉट एडिट इट. वैसे एडिट नहीं कर सकता. ये है, ये जो इस वक्त फॉर्म है ये है स्कैन्ड फॉर्म. इसे हम कहते हैं डिजिटाइज होना. ये डिजिटल इमेज के अंदर है. बट एक और एडवांटेज है स्कैनर्स का, अगर हम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर लें, OCS सॉफ्टवेयर, OCR सॉफ्टवेयर, OCR सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने से, यूज करने से फायदा ये हो जाता है कि आप स्कैनर्स यूज करते हैं, स्कैनर के अंदर आपका डेटा जो है वो हार्ड कॉपी फॉर्म से ट्रांसफॉर्म होता है मशीन फॉर्म के अंदर, बट वो एडिटेबल फॉर्म में होता है.
वहां पे डेटा आपका जो है वो डॉक्यूमेंट बेस्ड हो जाता है, जहां पे आप इजीली जो है, अच्छा यहाँ पे ऑब्वियसली इश्यूज जो है वो होते हैं, यहाँ पे जो है वो ओसीएस सॉफ्टवेयर के अपने इश्यूज हैं, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक्स भी हो सकती है, लोगों की हैंड रिटन मिस्टेक्स भी हो सकती है, जिससे वो अंडरस्टैंड कर सके या ना कर सके वो सॉफ्टवेयर। लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई एम राइटिंग बी एंड इट इज लाइक पोए एज वेल, ठीक है, इन उर्दू। if I am writing 5, it is equivalent to s as well in English, ठीक है ना। तो ये इश्यूज जो हैं वो राइटिंग के इश्यूज या टाइपिंग के इश्यूज या फॉन्ट्स के इश्यूज होते हैं। दैट्स व्हाई अगर वो उसे प्रॉपर्ली ट्रांसफॉर्म शायद समटाइम्स नहीं कर पाते, बट एक्यूरेसी लेवल लो है नो डाउट, बट स्टिल आपकी एडिटेबल फॉर्मेट में चीज आ जाती है, आपका डेटा पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक डॉक्यूमेंट के अंदर, जो कि बहुत यहाँ पे इस वक्त डेटा आपका ट्रांसफॉर्म किसमें, अगर इसको सिंपल विदाउट ओसीएस सॉफ्टवेयर किया जाए तो डेटा ट्रांसफॉर्म है आपका सिंपल एक हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी फॉर्म के अंदर। जबकि अगर आप इसे ओसीएस सॉफ्टवेयर के थ्रू इस्तेमाल करते हैं तो आपका डेटा ट्रांसफॉर्म हो जाता है एडिटेबल फॉर्म के अंदर, जिसके अंदर आप जो है वो डॉक्यूमेंट्स में जो है वो उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, हाउ दिस इमेज इज ट्रांसफॉर्म, इसका ये स्टेप्स जो है यहाँ पे प्रोवाइडेड है। लेट मी टेल यू, फास्ट पेपर्स के अंदर क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली, जिसके अंदर हमारे पास स्टेप्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं। इट्स अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज इन O3। अब जो अपकमिंग पेपर होगा फाइनली वो आप लोग का ही होगा, ठीक है। आज तक स्कैनर का कोई भी क्वेश्चन स्टेप वाइज नहीं आया है। स्टेप वाइज क्या होता है, फॉर एग्जांपल दीस आर द स्टेप्स दैट हैज बीन शोड हियर इन दिस बुक, कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो रहा है, सेकंड क्या हो रहा है, थर्ड क्या हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं इसको एंड देन मैं जो है वो पास पेपर क्वेश्चन के ऊपर आऊंगा। द कवर इज फर्स्ट रेज्ड एंड देन द डॉक्यूमेंट इज प्लेस्ड ऑन अ ग्लास पैनल एंड देन द कवर इज क्लोज। कहता है बस सिंपल डॉक्यूमेंट ग्लास पैनल के ऊपर रखा और ग्लास पैनल को जो है क्लोज कर दिया। A bright light then illuminates the document. Modern scanners use a type of xenon lamp which produces a very bright light. एक xenon lamp use किया जा रहा है, एक bright light जो है वो प्रोड्यूस करवाई जा रही है, ठीक है। ये ब्राइट लाइट क्या कर रही है, इट्स वर्किंग लाइक अ सिंपल फोटोकॉपी मशीन। अगर आप लोगों ने देखा हो तो फोटोकॉपी मशीन के अंदर जो है वो एक पेज रख दिया जाता है एंड देन नीचे से जो है वो एक लाइट जो है वो पूरी जो है उसको स्कैन कर देती है, पढ़ लेती है। तो आपने ये काम करना है। Third point, a scan head moves across the document. A scan head moves across the document. Scan head ये document for example रखा हुआ है, यहाँ से ये scan head जो है ये move करेगा और ये पूरा का पूरा जो है ये document को scan करता हुआ जो है वो जा रहा होगा until the whole page has been scanned. An image of the document is produced which is then sent to the lens using the series of mirrors. अब इसकी image एक internally produce हो जाएगी जो कि एक lens को provide की जाएगी जिसके पास बहुत सारे mirrors हैं. The lens focuses the document image. The focused image now falls into CCD. ये जो image जो focus हुई होगी ये CCD, that's called charge coupled device. This is the device which contain the number of ICs, ठीक है, etched into silicon. Essentially, the CCD is made up of thousands of light sensitive elements. And what are these light sensitive elements? These are known as pixels. And what we all know about the pixel, pixel is the picture element. The smallest possible picture element is a pixel. तो ये जो CCD पे जब fall करेगा तो क्या होगा, ये pixels को create करेगा and each element creates an electric charge when light falls into it. This means that the scanned image is now transformed into electronic form. तो इस तरह एक इमेज जो कि आपकी हार्ड कॉपी फॉर्म होती है वो डिजिटाइज हो जाती है, हार्ड कॉपी फॉर्म से सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। एंड व्हाट आई वाज सेइंग अबाउट द क्वेश्चन, like these are the steps. First step, the first cover cover is raised and then putting the document and then cover is closed. Then bright light comes in, like it's a fourth step. Scan head moves across the whole document. Fifth step, okay. Then it is the picture document that is produced is sent to the lens. Sixth step, then the focused image now falls into CCD. Lens focuses the image. Seventh step, focused image now falls into the CCD. Eighth step, this CCD produces a pixel. Ninth step, and now picture can transform into electronic form. These are 10 steps that you can consider in this whole scenario. क्या हो सकता है इन 10 steps को
ये मर्ज भी कर सकते हैं और इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इनटू 6 और 7 स्टेप्स, जितने नंबर का आपका क्वेश्चन बनाना होगा, पेपर बनाना होगा, ठीक है। और क्वेश्चन इस तरह आएगा, आ सकता है, आएगा नहीं, आ सकता है, और प्रीवियसली आया है दूसरे टॉपिक्स के लिए, प्रिंटर्स वगैरह के लिए हमारे पास पास वर्जन मौजूद है। क्वेश्चन इस तरह आएगा, आपको जो है वो सारे स्टेप्स दिए हुए होंगे बट वो शफल हुए होंगे और आपने बताना होगा कि विच कम्स फर्स्ट एंड विच कम्स आफ्टर द फर्स्ट स्टेप एंड देन सेकंड स्टेप एंड द थर्ड स्टेप। ये भी पॉसिबल है स्टेप्स जो हैं वो ना लिखे हुए हो, पॉइंट्स लिखे हुए हो, आपको जो है वो नंबरिंग के आगे आपको स्टेप्स लिखने हो, लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कुड कम फ्रॉम द स्कैनर टॉपिक। इज दैट ओके? एनी क्वेश्चन? No, sir. Okay, double A, can you please let me know who are you? You guys are supposed to join by your own name. Who's this double A? Who is this double A? Equipped with OCR software allows the scanned text from the document to be converted into a text file format. This means the scanned image can now be edited and manipulated by importing it into a word processor. Got it? जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप OCR सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, OCR सॉफ्टवेयर को यूज करने का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि आपका टेक्स्ट एडिटेबल फॉर्मेट में आ जाएगा. Now this means that the scanned image now edited and manipulated by importing it into the word processor. तो इसे वर्ड प्रोसेसर के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं. जबकि ओरिजिनल वर्ड डॉक्यूमेंट वाज अ फोटोग्राफ और इमेज, देन द स्कैन्ड इमेज फॉर्म्स एन इमेज फाइल सच एज JPEG. ठीक है, तो JPG के अंदर जो है वो ये इस्तेमाल हो रहा होगा. Now 3D scanners, guys, 3D scanner is a very important input device जो कि एक रियल ऑब्जेक्ट को स्कैन करके उसकी रियल इमेज कंप्यूटर में ट्रांसफॉर्म करती है. आप लोगों ने देखा होगा 3D मॉडल्स बनते हुए. 3D मॉडल्स कैसे बनते हैं? 3D मॉडल्स या कंप्यूटर में डिजाइन किए जाते हैं या 3D स्कैनर से उसकी इमेज को लाया जाता है सिस्टम के अंदर और फिर उसको वहां एडिट किया जा सकता है इनटू अ CAD सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो CAD is a software that is used to design a model. ठीक है. Now 3D scanners can scan the solid objects and produce 3-dimensional image. Since solid objects has 3 dimensions, that is X, Y, Z coordinates, these coordinates, these scanners take images at several points along these 3 coordinates. A digital image which represents the solid object is formed. डिजिटल इमेज क्या है? डिजिटल इमेज एक सॉलिड ऑब्जेक्ट की बनाती है एंड एज यू ऑल नो हम सब एक सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं एंड सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैव 3 कोऑर्डिनेट्स, दैट इज X, Y, Z. A digital image which represents a solid object is formed. The scanned image can now be used in CAD or more recently sent to a 3D printer to produce a working model of the scanned image. What is CAD? CAD क्या है? CAD is a computer aided design. It is a software that is used to edit or manipulate the designs या create designs. आप लोगों ने नेशनल ज्योग्राफिक के अंदर नॉर्मली देखा होगा, फॉर एग्जांपल कार का कोई बॉडी पार्ट बनाया जा रहा है या बिल्डिंग डिजाइन की जा रही है या किसी भी आर्किटेक्चर के लिए हम कोई भी चीज डिजाइन कर रहे हैं. आप लोगों ने देखा होगा एक सॉफ्टवेयर जिसके अंदर एक डिजिटल इमेज बनी हुई होती है. ठीक है, उसको प्रोटोटाइप बना हुआ होता है और इसे 3 डायमेंशन में हर जगह से देखा जा रहा होता है. मेरे इस हाथ के एंगल को देख के वो इस तरह जो है वो उस मॉडल को जो है वो घुमा के जो है वो देख रहे होते हैं. देखा है आपने ये? जिस तरह मेरा हाथ घूम रहा है इस तरह 3D फॉर्म के अंदर जो है वो उसे घुमा के देखा जा रहा होता है. दैट सॉफ्टवेयर जो कि उसको जिसमें देखा जा रहा था, दैट सॉफ्टवेयर is a 3D. That software is a CAD software in which you can edit, you can create, you can import the 3D images and then you can test those 3D images as well. Test से क्या मतलब है मेरा? Test से मतलब ये है कि like for example bridges बनाए जा रहे हैं.
ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं और ब्रिजेस को जो है वो फॉर एग्जांपल टेस्ट करना है कि ये एक जगह पे पिलर है, ये दूसरी जगह पे पिलर है, और जो है वो ऊपर अगर गाड़ियां गुजरेंगी तो वो एक पिलर से दूसरे पिलर का डिस्टेंस कितना ज्यादा होगा कि ब्रिज जो है वो ना गिर सके। इस तरह की टेस्टिंग भी जो है वो इन सॉफ्टवेयर पे की जाती है। टेस्टिंग इस तरह की भी होती है कि आपका कोई भी जो है वो कंपोनेंट ऑफ अ मशीन विच यू आर डिजाइनिंग वो सही वर्कआउट कर रहा है नहीं कर रहा। तो ये बेसिकली इट्स अ डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, बट इसके थ्रू जो है इसके अंदर ऑब्वियसली मेजरमेंट्स होती है, सब कुछ होती है। तो इसकी मेजरमेंट्स वगैरह देख के बता दिया जाता है कि यार ये इतनी मेजरमेंट का जो एरिया बनाया गया है ये आया सही काम करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपका कैट सॉफ्टवेयर है। there are numerous technologies used in 3D scanners. Lasers, magnetic resonance, white light and so on, different technologies के through जो है ये 3D scanners काम कर रहे होते हैं। It is beyond to the scope of this book to look at these in any great depth. As we all know, it is not the part of our course, so we're not going to see it. The second application that follows describe the technology behind one form of 3D scanning. 3D and 2D scanning से फायदा क्या होता है? Let's take an example of 2D and 3D scanners at the airport. 2D scanners are used at airport to read passports. They make use of OCR technology to produce digital images which represent the passport pages. Because of the OCR technology, these digital images can be manipulated in a number of ways. For example, the OCR software is able to review these images, select the text part, and then automatically put the text into the correct field of an existing database. It is possible for the text to be stored in an ASCII format. It all depends on how the data is to be stored. I've read the first and second paragraph. आप समझो? पासपोर्ट हम लोग नॉर्मली लेके चलते हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर। पासपोर्ट को क्या किया जाता है, एक स्कैनर के ऊपर ये लोग रखते हैं और स्कैन कर देते हैं। अब इससे फायदा ये होता है, वो स्कैनर ऑब्वियसली जिस तरह मैंने वो ओसीआर सॉफ्टवेयर का बताया, वो ओसीआर सॉफ्टवेयर की मदद से वो उस डेटा को ट्रांसफॉर्म करता है एडिटेबल फॉर्म के अंदर। और उनका जो अपना डेटाबेस है एयरपोर्ट्स का, उस डेटाबेस के अंदर जो है वो जो डिफरेंट फील्ड्स हैं, नेम की फील्ड है, ठीक है, फॉर एग्जांपल लास्ट नेम की फील्ड है, देन ये जो है वो डेट ऑफ बर्थ की फील्ड है, ये डिफरेंट फील्ड्स है। इसके अंदर डेटा जो है वो ऑटोमेटिकली जाके सेट हो जाता है। ये फायदा है ओसीआर सॉफ्टवेयर का। ठीक है, देन क्या होता है, ये कह रहा है इट इज पॉसिबल टू फॉर द टेक्स्ट टू बी स्टोर्ड इन ASCII फॉर्मेट। व्हाट इज ASCII फॉर्मेट? इफ यू गाइस रिमेंबर चैप्टर नंबर 1, ASCII फॉर्मेट में क्या था, डेटा हमारा जो भी विद द हेल्प ऑफ यूजिंग कीबोर्ड जो भी इनपुट हो रहा है वो एक ASCII कोड जो है वो जनरेट कर रहा है। तो वो कह रहा है ASCII फॉर्म के अंदर बैकएंड पे जो है वो स्टोर हो गया। It all depends on how the data is to be stored. ये डिपेंड करता है वो सॉफ्टवेयर कहाँ कौन सा एयरपोर्ट किस तरह का काम कर रहा है। Then at many airports the 2D photograph in the passport is also scanned. आपने देखा होगा एयरपोर्ट के ऊपर 2D फोटोग्राफ्स, आपने देखा होगा एयरपोर्ट अगर आप गए, आपकी इमेज ली जाती है, आपकी पिक्चर कैप्चर की जाती है, आपकी पिक्चर कैप्चर कर ली जाती है। उससे ये फायदा होता है कि अब आपके पास, अब एयरपोर्ट के पास दो तरह का डेटा आ गया आपका। एक वो डेटा जो कि पासपोर्ट के अंदर था, उन्होंने उसे स्कैन कर लिया, और दूसरा वो डेटा जो अभी अभी कैप्चर किया। अब क्या करना है, ये आपकी फॉर एग्जांपल कैप्चर्ड इमेज है, ये आपकी जो है वो पासपोर्ट के ऊपर इमेज है। अब दोनों इमेजेस को एक दूसरे के साथ मैच करना है कि ईदर वेदर दीज टू पर्सन आर सेम और नॉट। कहेंगे ये दो लोग जो इस वक्त आए हैं, एक पिक्चर वाला जिसने जो अभी हमने कैप्चर किया है, और एक वो आदमी जो इस पासपोर्ट के अंदर जो पिक्चर है, क्या ये दोनों लोग सेम है या नहीं है। इन दोनों को जो है वो कंपेयर किया जाता है। अब कंपेयर कैसे किया जाता है, कहता है एट मेनी पासपोर्ट्स द 2D photograph in the passport is also scanned and stored as JPEG image. The passenger's face is also photographed using a digital camera. A 2D image is taken so it can be matched to the image taken from the passport. The two digital images are compared using the face recognition software. अब यहाँ पे अगेन कंप्यूटर साइंस का एक बहुत बड़ा जबरदस्त किस्म का जो है वो सॉफ्टवेयर मौजूद है, दैट्स कॉल्ड फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर। इस फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर को यू गाइस ऑल नो वेरी वेल। बहुत सारे मोबाइल फोन्स, सेल फोन्स भी जो है इस्तेमाल कर चुके हैं, जिसमें फेस को रिकग्नाइज करता है एंड देन हमारा सिस्टम जो है वो अनलॉक हो जाता है। और वो फेस को रिकग्नाइज कैसे करता है, अब आज आप इसको देखेंगे। कहते हैं की पार्ट्स ऑफ द फेस आर कंपेयर्ड। What are the key parts? These are the key parts that has been discussed here. यहाँ पे अगर आप किसी इमेज को देखें, यहाँ पे आपके साथ जो शेयर्ड है
ये जो शेयर्ड आपके पास इमेज है, इसके अंदर देखिए ये डिफरेंट डॉट्स बने हुए हैं। इन डॉट्स का क्या काम है? ये डॉट्स जो है वो बेसिकली मेजर कर रहे हैं डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल ये सर के ऊपर एक डॉट है, जहाँ पे खाली अगर हमें अपनी आईब्रोज देखूं, इन आईब्रोज को अगर पिक्चर को देखो, आईब्रोज के पास देयर आर 7 डॉट्स। दैट मींस सिर्फ जस्ट इन आईब्रोज को जो है वो इन 7 डॉट्स में मेजर कर रहा है। एक डॉट से दूसरी डॉट का मेजरमेंट, दूसरे डॉट से तीसरे डॉट का मेजरमेंट, तीसरे से चौथे का मेजरमेंट, फोर्थ से फिफ्थ का, फिफ्थ से सिक्स का, सिक्स से सेवंथ का। एंड देन 7 ये जो डॉट्स है, इनसे यहाँ पे आईज से पहले इनका मेजरमेंट, देन यहाँ से इन डॉट से आईज तक का मेजरमेंट, देन आईज से हेड तक का मेजरमेंट, एंड डिफरेंट मेजरमेंट आर अवेलेबल हियर। फायदा इससे क्या होता है? फायदा इससे ये होता है कि जो मैंने इसमें आपको बताया कि ये वो इमेज है जो कि आपकी पासपोर्ट के ऊपर है। ये वो इमेज है जो अभी अभी कैप्चर की गई है। अब जो कैप्चर्ड इमेज है आपकी, उसमें भी यही सेम जो है वो सेम डॉट्स के साथ जो है वो एक सेम एल्गोरिथम चलाया जाता है और सेम डॉट्स लगाए जाते हैं। और जो अभी पासपोर्ट से ली गई है उसके ऊपर भी सेम एल्गोरिथम लगाया जाता है। देन उसकी मदद से दोनों मेजरमेंट्स को फॉलो किया जाता है, उसको कॉपी किया जाता है, मेजर किया जाता है कि इधर जो दो डॉट्स, जो फॉर एग्जांपल ये दो आईब्रो के दरमियान लेट से डॉट है जो इन सेंटर है, ये इस इमेज का जो मेजर कर रहा है, क्या इस इमेज का भी सेम मेजर कर रहा है? ठीक है, क्या दोनों सेम है? इन द सेम वे आईज टू नोज का डिस्टेंस, इन द सेम वे नोज टू माउथ का डिस्टेंस या लिप्स का डिस्टेंस, इन द सेम वे लिप्स टू चिक्स का या चिन्स का डिस्टेंस। तो ये डिफरेंट डिस्टेंसेस को मेजर करने के बाद इस बात के ऊपर अश्योर करता है कि जो आया है बंदा एयरपोर्ट के ऊपर, वो वही है जो बंदा ये पासपोर्ट में है। क्योंकि एक वक्त में जरूरी नहीं है कि पासपोर्ट के ऊपर जो इमेज हो वो एक जैसी हो, क्योंकि पासपोर्ट आपने नॉर्मली देखा है 5 साल के बाद एक्सपायर हो रहा है, 10 साल के बाद एक्सपायर हो रहा है। 5 साल 10 साल के अंदर बंदा जो है वो दाढ़ी रख सकता है, चश्मे लगा सकता है, बूढ़ा हो सकता है, जवान हो सकता है, बच्चे से थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है, लेकिन कुछ की पार्ट्स जो हमारी बॉडी के होते हैं वो चेंज नहीं होते। ये उन की पार्ट्स को मेजर करता है पासपोर्ट से और फिर रियल बंदे से, एंड देन चेक किया जाता है क्या है। सी काइंडली रीड दिस इन योर ओन। ये जो फर्स्ट मैंने जब आपको सारी बातें समझा दी, वो ये फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर लिखी हुई। The face in figure 5.2 shows several of the positions used by the face recognition software. Each position is checked when the software tries to compare two facial images. Data such as distance between the eyes, width of the nose, shape of the cheekbones, length of the jaw lines, shape of the eyebrows. See कितनी सारी चीजें जो हैं ये कंपेयर करके ये आपको बता सकता है क्या है बंदा जो है वो वाकई में ओरिजिनल है, वही है, किसी किस्म की जो है बेईमानी नहीं हो रही, गलत पासपोर्ट इस्तेमाल करके कोई दूसरा बंदा जो है वो नहीं आ रहा। When the image from the passport and the image taken by the camera are compared, these key positions on the face determine whether or not these two images represent the same face. Getting it, बेटा? ये दो बातें represent, ये दो images represent करती हैं कि ये same face है या नहीं है। Now some other applications of the scanner, then हम scanner के topic को end करें। कुछ applications हैं जहाँ पे 3D scanners use हो रहे हैं। ये एप्लीकेशंस का नीचे जस्ट नेम इनफ है। एक्स-रेज, सीटी स्कैनर्स, हमें पता है ये जो है वो 3D इमेजेस। अब देखिए कंप्यूटर साइंस की टेक्नोलॉजी जो आपकी 3D स्कैनर्स जो बने, प्रोड्यूस हुए, उसकी मदद से आपकी मेडिकल साइंस ने भी तरक्की हासिल की। मेडिकल साइंस के अंदर आपके पास जो है वो सीटी स्कैनर्स आ गए, एक्स-रेज आ गए, एमआरआईज आ गए, गामा रेज कोई टेस्ट होते हैं, स्पेक्ट के टेस्ट वगैरह, ये सब चीज़ें आ गई। तो कंप्यूटर साइंस की तरक्की बेटा हमेशा याद रखना, डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर साइंस इज ऑलवेज द डेवलपमेंट ऑफ द होल वर्ल्ड। ठीक है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर साइंस वी गाइस आर हियर एंड वी आर टेकिंग द वर्चुअल क्लासेस। ये फायदा है। आज देखो आज की दुनिया के अंदर पता नहीं कितने लोग इस वक्त जो है वो जॉबलेस हो गए हैं, रिसेशन टाइम चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन राइट नाउ दोस पीपल हु आर कनेक्टेड with the computer science, they are connected with the computers, are not jobless right now just because of the computer science. तो getting it के the importance of the computer science कि computers होने की वजह से आज देखो कोई भी सॉफ्टवेयर हाउस बंद नहीं हुआ पूरे लॉकडाउन के अंदर। इवन के स्कूल भी जून जुलाई वगैरह के लिए शायद बंद हुए तो चलो जून जुलाई तक शायद स्कूल भी बंद ना होते क्योंकि हम लोग ऑनलाइन की तरफ आ गए थे। हजारों मार्केट्स बंद हो गई, हजारों काम धंधे लोगों के बंद हो गए,
बहुत सारी चीजें जहां फिजिकली ह्यूमन को होना लाजमी था वो बंद हो गया। लेकिन कोई भी एक सिंगल सॉफ्टवेयर हाउस एक दिन के लिए भी बंद नहीं हुआ। डू यू गाइस नो, एक सिंगल सॉफ्टवेयर हाउस एक दिन के लिए भी बंद नहीं हुआ। It was very easy to transform that software house the office into your home. It was very easy, क्योंकि जो बंदा काम कर रहा है बंदा वही है, वो घर पे बैठ के काम करे या ऑफिस में जाके काम करे। उसने लैपटॉप पे ही काम करना, वो लैपटॉप घर पे रखे या ऑफिस में रखे, दैट्स इट। डिफरेंस क्या हुआ मीटिंग का, डिफरेंस क्या हुआ फिजिकल मीटिंग का, फिजिकल मीटिंग का ट्रांसफॉर्म इनटू वर्चुअल मीटिंग्स, कोई इशू ही नहीं था। तो बड़ा आसान, मतलब एक सिंगल दिन का भी जो है वो किसी भी एक सॉफ्टवेयर हाउस को नुकसान नहीं हुआ। इवन दोस कंपनीज व्हिच वर वर्किंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कंप्यूटर्स, वो उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ा, वो भी एक दिन ऑफ नहीं हुई, कोई बंद नहीं हुई। हाँ, वो कंपनीज जिनके अंदर कंप्यूटर्स के साथ साथ दूसरी फिजिकल एम्पावरमेंट, फिजिकल फोर्स भी चाहिए थी, ह्यूमन फोर्स भी चाहिए थी, उनको बड़ा इफेक्ट पड़ा, उनको बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। बहुत टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए एटलीस्ट वो भी बंद हुई और उन्होंने अपनी चीजों को जो है वो हिटर किया, ट्रांसफॉर्म किया, जो है वो कि वो किसी न किसी तरह कंप्यूटर से जो है वो हेल्प लेके जो है वो काम करें। So today's topic was scanner, that we did in detail. In the next class, I want all of you to tell everyone, every other student, right now जो है वो we don't have Asan, we don't have Malaika, we don't have Shalam. Any other student? No, sir. ओके, तो ये 3 स्टूडेंट्स हमारे साथ नहीं थे। आई वांट के जो है वो नेक्स्ट टाइम में 3 स्टूडेंट्स भी हो। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्दर क्लासेस। आप लोग का अभी इस वक्त ब्रेक टाइम आ गया है। हम 10:47 पे जा चुके हैं, 2 मिनट्स हमने ज़्यादा क्लास ले चुके हैं। ऑल्दो आई वांट कि नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो सब हो, एंड इंशाल्लाह विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट वुड बी, ये स्कैनर की थोड़ा सा वो बता रहे हैं कि जो है वो एक ये, अच्छा मैं इसको एंड ही कर दूं। ये एक कंप्लीट आपका एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है जिसे आगे जाके स्लाइसिंग में तोड़ा जाता है। सॉलिड ऑब्जेक्ट नाउ शोन एज अ सीरीज ऑफ स्लाइसेस, ईच स्लाइस इज स्टोर्ड एज अ डिजिटल इमेज इन द कंप्यूटर, दैट्स इट। ठीक है, ये सिर्फ कह रहा है कि सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है स्लाइस में तोड़ दिया जाता है ताकि इंटरनली जो है वो इससे काम कराया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर विल वर्क विद दी, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है वो बारकोड रीडर्स एंड स्कैनर्स पे काम करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, स्टे होम, स्टे सेफ, और अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज सर। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज। Office.